वेलकम बैक गाइस। मैंने जो अभी वीडियो बनाई है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करे आपके साथ। तो इस वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू टू anthropology classes. So let us discuss PYQs. So we have completed chapter 9. So we are moving in the reverse direction. So impact of Hinduism, Buddhism, Christianity, Islam, and other religion on tribal societies. So the various religions, the form of belief in supernatural forces, in spirits, in soul, um, in different things, in plants and animals, in sacred things is called a religion. So what is I will discuss with you the impact of these religions on the tribal societies. Okay, I will discuss with you the impact of these on the tribal societies. So let us take first questions. So what is first question? Let us see. So critically assess the impact of Christianity on the tribal culture. So guys, I told you that religions are doing a lot of great things, impacting the various things, having great impact on one another. Okay, so Christianaries, what did Christians do? Britishers, it is connected with the Britishers coming to India. Britishers exploited India. Christianity wanted to establish their roots in India, studied the various tribal societies. Christian missionaries, they converted many uh, Christians into various tribal societies into Christians. Christian missionaries started educating the tribal mass. Christian people had impacted the economic life. Christians set up, initiated many health programs, increased the literacy rate of tribal groups, conducted tribal studies. So it has positive impact through increase of nutritional level, increase of literacy level. So try to remove various types of social evils, like bring out the ill effects of alcohol abuse. So negative impacts it has also, that is there was cultural loss. Okay, so it there was
they lost their culture. So it also created social stratification because converted and non-converted tribes, it causes conflict. So Northeast India, Nagas, Mizos, and Khasis, matrilineal societies. So their social life, that is their family pattern, marriage influence, they started marrying in Christian customs. So the traditional institutions got converted into new Christian institutions. So they also altered their rituals, they also altered their customs, they got into the ways of living of the various Christian people. So impact is not either gain or loss. It introduced new social stratification. Okay, so a critical assessment must, there has to be less cultural loss and more gains. Welfare gains should be given to the tribes. The impact of Hinduism. So this was the impact of Christianity on the tribal people and the impact of Hinduism on the tribal people of India. Hinduism. So what happens? Hinduization. Hinduization, Sanskritization takes place. So caste system भी establish हो जाता है ट्राइबल्स के लोगों में. ट्राइबल्स के लोग संस्कृताइजेशन अडॉप्ट करते हैं. वो रिचुअल्स, कस्टम्स, फेस्टिवल्स अडॉप्ट करते हैं ट्राइबल नॉन ट्राइबल पीपल के, कास्ट पीपल के. तो उससे क्या होता है, उनका सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. उनका जो ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस थे वो अल्टर हो जाते हैं. तो भिल, गोंड, संथल, औरवान, नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी ने काफ़ी इम्पैक्ट किया. केरला में भी इम्पैक्ट किया. सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स थे भिल, गॉन्ड्स, औरवान्स, संथल. इन्होंने हिंदू के नाम अडॉप्ट किए, हिंदूज की डाइटीज को वर्शिप किया. ओके, तो इनका अपना कल्चर इरोजन हुआ. इनके जो है इनहेरिटेंस को भी इन्होंने अल्टर किया, मैरिज को अल्टर किया, फेस्टिवल्स को अल्टर किया. और इनकी जो डिस्टिंक्ट कल्चर था वो अब डिस्टिंक्ट नहीं रहा, कल्चर एसिमिलेशन हो गई. ओके, सो वहाँ पे भी इग्लिटेरियन सोसाइटीज थी, लेकिन वहाँ पे भी कास्ट बेस्ड हिरार्की सिस्टम बन गया जब वो हिंदुइज्म के इम्पैक्ट से. अब हिंदुइज्म से लिटरेसी रेट भी उन्होंने इम्प्रूव की. एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए, हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किए गए, कल्चर डिस्टिंक्ट जो था वो लॉस हुआ और हिंदुआइजेशन हुआ, संस्कृताइजेशन हुआ. तो बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म ने क्या किया, इससे इरोजन हुआ कल्चर का, बट एसिमिलेशन हो गया बुद्धिज्म का. बुद्धिज्म ने इक्वालिटी को सेटअप किया. तो उन्होंने
अपने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करके वो अपने जो ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस थे वो भी उन्होंने मेंटेन किए और इनके रिचुअल्स भी अडॉप्ट किए। मींस दोनों जो है साथ साथ रहने लगे। तो इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सेटअप किया जैसे क्रिश्चियंस ने सेटअप किया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिटी वेलफेयर के एक्टिविटीज कैरी आउट की, कन्वर्ट्स हुए। तो वो कहीं ना कहीं जो एट्रोसिटीज थी, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज या फिर हिंदू हायरार्की से उनको छुटकारा मिला और वो एक नए सोशल ऑर्डर, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर था, वो चेंज करा उन्होंने। बुद्धिज्म का इम्पैक्ट भी हुआ। जैसे नॉर्थ ईस्ट में तिब्बतन बुद्धिज्म influences tribal practices, so convergents are rather than Christian और हिंदू influences। तो ये भी इफेक्ट हुआ। अब देखिए एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट किया, लिटरेसी के ऊपर इम्पैक्ट किया, रिचुअल्स जो उनके ट्रेडिशंस थे वो लॉस हो गए। इस्लाम से ने भी इम्पैक्ट किया, इक्वालिटी का संदेश दिया। केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ट्रेड को प्रमोट किया। ठीक है। दूसरी मार्जिनलाइजेशन फेस करने लगे और अपने मुस्लिम की प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट किया और रिटेन किया इंडिजिनस कस्टम्स को। ओके। इस्लाम मैट्रिलिनी होता है कि जब आप मदर लाइन में आप अपने किनशिप को ट्रेस करते हो। ओके। वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमने पढ़ा। वुमेन की एजुकेशन को इंक्रीज किया, विडो रिमैरेज को प्रमोट किया, जेंडर इक्वलिटी आई, और एंडोगैमी को अडॉप्ट किया। कास्ट को अडॉप्ट करने से एंडोगैमी को अडॉप्ट किया। डॉरी प्रैक्टिसेस को इनिशिएट किया। तो पैट्रिनेलियन सोसाइटी बनाएगी ताकि उनका जो है वो एक्सेस नहीं रही लैंड रिसोर्सेज का। पैट्रियार्की को प्रमोट किया। मिक्स्ड है। क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट भी देखा हमने। ट्राइबल इंडिया में किस तरह से रिलीजियस कन्वर्जन हुआ। जस जो तिब्बत के थे वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में। जो नॉर्थ ईस्ट के थे ट्राइबल ग्रुप्स वो भी कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में। जो सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स थे वो हिंदुज़म में कन्वर्ट हो गए। जो केरला के थे, उड़ीसा के थे, वेस्ट बंगाल के थे, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। हिंदू सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ा, बिल्कुल। ठीक है। क्रिश्चियनिटी ने इम्पैक्ट किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है। ट्राइबल रिलीजन का बेसिस क्या है? एनिमिज्म है।
टोटेमिज्म है और एंसेस्टर वर्शिप है। सो स्पेशलिस्ट ह्यूमंस एंड स्पिरिट्स। ओके, क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट हुआ ट्राइबल सोसाइटीज में। तो रिलीजन क्या है, क्या इम्पैक्ट हुआ कन्वर्टेड से, उनके कन्फ्लिक्ट भी हुए उनमें। ठीक है। रिलीजियस प्लूरलिज्म क्या चीज है, मीन्स बहुत सारे रिलीजन जो है वो साथ में रह रहे हैं। सॉलिडारिटी मीन्स सोशल बॉन्ड्स। ओके, ये हुआ इन दोनों के आने से। तो आप देखिए जो क्वेश्चंस आए हैं, आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया क्या था, करंट स्टेटस, नॉमेनक्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉमेनक्लेचर टर्म, अब पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का इस्तेमाल किया गया है, कभी कभी प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में है, ईस्टर्न इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में है। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा है वो है उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, वेस्ट बंगाल में है। तो सो क्राइटेरिया की बात करें, सो पॉपुलेशन उनकी लेस होती है, लिटरेसी लेवल लेस होती है, एग्रीकल्चर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में वो रहते हैं, इकोनॉमी हंटिंग गैदरिंग है, आइसोलेशन में रह रहे हैं, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कम डेवलपमेंट है, लिटरेसी लेवल लो है, मार्केट में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हार्ड एरिया इकोलॉजिकल आइसोलेशन है। ओके, सो देखा जाए कि पर्टिकुलर वुल्नरेबल ग्रुप्स का आपको पता होना चाहिए। एक तो कुछ क्राइटेरिया है इसको डिफाइन करने के, जैसे चेंचू है, बेंगा है, पर्टिकुलर वुल्नरेबल ग्रुप्स है। नॉमेनक्लेचर, तो कम से कम 75 पर्टिकुलर वुल्नरेबल ग्रुप्स हैं, 75। तो 75 अगर पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे अंडमान में है ग्रेट अंडमानीज, ओंगीज, जरावास, सेंटिनेलीज, चेंचूस है, चेंचूस है आंध्र प्रदेश में, कोंडा रेड्डी है, कोंडा सवारा है, कोंड, कुतिया कोंड, बिरहोर, सौरिया पहाड़िया, पर परहिया, बिरहोर, बिरहोर है, पेगा है, बिरहोर है, सिद्धि है, असुर है,
बिरहोर है, सहारिया है, टोडा है, इरूला है, कोटास है, कुरुम्बास है, थारू है उत्तर प्रदेश में, बिरहोर है, लोदा है, टोटो है। तो अब देखा जाए कि 75 पर्टिकुलर वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, 18 स्टेट्स में ये प्रेजेंट है और एक यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो डेबार कमीशन का क्राइटेरिया था, इनकी पॉपुलेशन स्मॉल है, लिटरेसी प्री एग्रीकल्चर लेवल इकोनॉमी है, लो लिटरेसी है, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, जोग्राफिकल आइसोलेशन है। ओके, तो ये आपने डेबार कमीशन डेबार कमीशन ने क्राइटेरिया दिया, जिस क्राइटेरिया के तहत हम किसी ग्रुप को, ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ पर्टिकुलर वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कह सकते हैं। टोडास है, इरूलास है, कोटास है, चेंचूस है, ओंगी है, जरावास है, सेंटिनलीस है, फिर सहारिया है, सिद्धि है। ये कोई आप 10-12 भी लिख दोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। बिरहोर है, बैगा है, इरूला है, कोटा है, टोडास है, कुरुम्बास है, पनियंस है, लोदा है, बोंडो है, बिरहोर है, जुआंग है, टोडा है, कडार है, कोरवा, मलपहाड़िया है, असुर है, बिरहोर है। ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स आपको याद करने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो ये क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से कि क्या इम्पैक्ट रहा है। किसी ने, अब देखो उनकी कल्चर एसिमिलेशन तो हुई है उसमें, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर का इरोजन हुआ है, कहीं पे रिटेन भी करके रखी हैं उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस उसको रिटेन करके रखा है। कहीं उन्होंने स्कूल्स खोल दिए, किसी ने इग्लिटेरियन का पाठ पढ़ाया, अब किसी ने हिंदू हिरार्की से हटाया, मार्जिनलाइजेशन से रिमूव कराया और न्यू मार्जिनलाइजेशन हिरार्की में उनकी बन गई। सिद्धि है, असुर है, टोडा है, कोटा है, लोदा है, असुर, लोदा, बाइगा, बिरहोर, चेंचूस, इरूलास, कोटास, कुरुम्बास, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो कुछ फॉरेजर्स हैं, कुछ हंटिंग गैदरिंग है, कुछ फिशिंग कम्युनिटीज हैं, इग्लिटेरियन नेचर है, क्लैन बेस्ड लीडरशिप है इनका, एल्डर मेंबर लीडरशिप है, कहीं पे विलेज काउंसिल्स हैं, क्लैंस में डिवाइडेड है, पॉलिटिकल सिस्टम कहीं पे रिटन अनरिटन लॉज हैं, लॉ एंड जस्टिस को इंश्योर करते हैं। तो ये हमारा, कहीं हमारे एंसेस्टर्स ऐसे रहते थे, हमें मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, हमें मटेरियल फैक्ट्स मिले हैं, स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं, हमने रेडियो कार्बन डेटिंग की है। तो आप देखिए इम्पैक्ट क्या रहा है, रिलीजन का इम्पैक्ट रहा है, 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स एंड नेशन स्टेट्स हमने पढ़ा है, कैसे वो उसको मिलते जुलते काम करता है। नेशन क्या है एक एक पॉलिटिकल यूनिट है,
एक सॉवरेन स्टेट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, एक बाउंड्री है, डेफिनेट बाउंड्री है उनकी, ठीक है। तो ट्राइब्स क्या है, एक सोशल ग्रुप है, किन्स बेस्ड ग्रुप है, स्मॉल साइज का ग्रुप है, और आपस में रिलेटेड है। उनका जो सोशल इंस्टीट्यूशंस थे वो अल्टर हुए हैं, फैमिली, मैरिज, नए नए ट्रेडिशंस उन्होंने अडॉप्ट किए हैं दूसरे रिलीजन्स के, अपने जो उनके ट्रेडिशंस थे उनको भी रिटेन करके रखा है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन से सोशल इवल्स को रिमूव किया है। तो बुद्धिज्म हिमालयन ट्राइब्स में आए हैं, तिब्बतन बुद्धिज्म, गारो, खासी, नागो, इन्होंने क्रिश्चियनिटी ने इम्पैक्ट किया है, गोंड्स, ओरवान्स, संथल्स, मुंडा, हिंदुइज्म ने इम्पैक्ट किया है। ट्राइब्स हैं वेस्ट बंगाल के, उड़ीसा के और केरला के, इनको इम्पैक्ट किया है मुस्लिम्स ने। तो ये इन्होंने कन्वर्ट किया है दूसरे रिलीजन में। रिलीजन बेसिकली है क्या, एक बिलीफ है सुपर नेचुरल फोर्स में, एनिमिज्म में, एनिमेटिज्म में, नेचुरलिज्म में, टोटेमिज्म में। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, टोटेमिज्म क्या होता है, नेचुरलिज्म क्या होता है, फैक्टिज्म क्या होता है, एनिमिज्म क्या होता है, एनिमेटिज्म क्या होता है। ये फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स हैं, वेरियस मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है रिलीजन्स के ऊपर। तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं। मसाई ट्राइब है, हड़जा है, यानोमैमो है, हंटिंग गैदरिंग है, नेऊर्स है, नवाजो है, इन्यूट्स हैं, नागास हैं। ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं पूरे वर्ल्ड के, आपस में वो रहते हैं। उनका एक डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, प्रिमिटिव लेवल ऑफ इकोनॉमी है, प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, मसाई, ठीक है। देन न्यूर्स हैं, यानोमैमा है, हड्जा है, कॉन्स है, ओरिया है, गॉन्ड्स है, टोडास है, कोटास है, चेंचूस है, इरुलास है, कुरुम्बास है, कॉन्स कॉन्स हैं, सिद्दीस हैं, वर्लिस हैं, असुर्स हैं झारखंड के, बिरहोर हैं, बेगा है, मल पहाड़िया है, सौर्य सौरिया पहाड़िया है, टोडा है, कडार्स है, कुरुम्बा है, कढ़ार्स है, बेगास है, मरिया गॉन्ड्स हैं, बिरहोर है, बोंडो है,
जुआंग है, खरिया है, लोधा है, सहारिया है, कोटास, कुरुम्बास, इरुलास, पनियंस, टोडास, बिरहोर, लोधा, टोटो, ये सारे प्री इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, ज्योग्राफिकली ये लोग आइसोलेटेड हैं। ये आपको फैक्ट्स पढ़ने होंगे। यानो में भी है, एम पूछे है, चाइल्ड में मसाई है, एग्रीकल्चरिस्ट पैस्टोरलिस्ट है, युलू है, जुलू कैटल रेयरिंग करते हैं, इग्बो ट्राइब है, जुलू, इग्बो, हिम्बा, हडजा बुशमैन है, कोया है, लेप्चा कहाँ पे है, सिक्किम्स में है, बोतिया कहाँ पे है, उत्तराखंड और सिक्किम में है, बोटिया, लेप्चा कहाँ है, सिक्किम में है, लेप्चा और बोटिया, कोया, लेप्चा, बोटिया, इरुलास, कुरुम्बास, चेंचूस, कोटास, टोडास, गरासिया है, त्रिपुरी, अडी, अपटानी, अपतानी, गारो, खासी, बोडो, भोंडो, बोडो, नागा, जुआंग, बाइगास हैं, वर्ली हैं, भिल्ड हैं, हो है, ओरवान है, मुंडा है, संथल है, कौन है। ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनकी अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग वे में ये डील करते हैं इन चीज़ों को। तो I think I have given large number of videos on tribal India, on traditional Indian social structure, on prehistoric culture, tribal India, archaeological India. I have discussed in detail. I have discussed paper 1 in detail, tribal anthropology, physical anthropology, biological anthropology I have discussed in detail, like various socio-cultural anthropology I have discussed each in details, different phenomena that are existing in various social institutions, the religious, the economic, the political, the family, marriage, sociality, culture, language, okay, then society, then relation branches of anthropology, then scope and development of anthropology. All these have given a lot of discussed. No, I am ready to deliver lectures to 400 people even. I can compete with anybody. I can give you better answers. That is the confidence level that I have achieved within me. So Gond, so largest tribal group in India. Gond is the largest tribal group in India. Gond practice Gotul youth dormitory. Okay, Gotul Youth Dormitory exists in Gond's largest tribal group in India. Gond. Santals are called agriculturists. They settled cultivation. They are also agriculturists. Gondi language. Then they are also agriculturists. Santhal are also agriculturists. Munda, Birsa Munda, Kulkulan rebellion, shifting agriculturists. So Gonds, Santhals, Mundas, Orvans, Christian influence, Ho, agriculturists, Ho language, Munda family, festivals, Manje Porob. So Santhals, Orvans, Munda, Ho, Gonds, largest tribal group in India, Gond, Munda, Santhal,
Oh, agriculturist tribe, primitive level of technology. They have a revolt system. Gaunts, Gotul dormitory, youth dormitory, Gotul, Mundas, Orwans, agriculturist tribe, Bill, bow arrow tradition, Bhil, bow arrow traditions, Varli, Bhega, princess of the forest, Bhega, shifting cultivation, Birhor made ropes, Juang, Northeast India, Nagaland, Mizo, Bodo, Assam, Khasi and Garo are matrilineal in nature. So these how the things are taken care of. You have to analyze the different tribal groups of India and the world. You must remember 70 to 80 tribal groups, and also what do they do, their social life, their economic life. Okay, then the religion, then political life. You must understand social cultural aspects of these tribal groups. Anthropology contribute to the development of 8.6% of the total tribal population. There are 75 particular vulnerable tribal groups. Language are extincting. Diversity you have to maintain through studying these tribal groups. They are the policy. They work with the policy makers and provide guidance in policy making. Anthropologists are called social doctors and social engineers. Anthropometric studies are being done in a lot of manners. Okay, so now let us move towards the concept of ethnicity and ethnic conflicts and political developments, unrest among the tribal communities, regionalism, demand for autonomy, pseudo-tribalism, social change among the tribes during colonial and post-independence India. So you have to discuss these questions of chapter 8, chapter 7. So I have completed chapter 8, unit 8 and unit 9. So I will moving towards the unit 7, in which we take firstly, as I am saying that I am moving in the backward direction. So I will be taking with you this unit subunit chapter unit 7.3. So you must listen to these videos so that you develop great understanding of this. So so question is, do you find any significant change in the approaches towards the tribe? Yes, the colonial approach is different from, उनको कहा गया कि आप partial excluded areas उनके ऊपर
एट्रोसिटीज की गई, उनको फॉरेस्ट से रिमूव कर दिया गया, कल्चर लॉस हुआ, मिशनरीज ने उनको कन्वर्ट कर दिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत सारे काम किए गए, कॉन्स्टिट्यूशंस में इनके लिए प्रोविजंस रखे गए, शेड्यूल्ड एरियाज और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसे 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल इनके लिए रखे गए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, तो इससे भी बड़ा फायदा हुआ इनको, और पीसा एक्ट आया, इससे भी बड़ा फायदा हुआ। यस देयर इज, बट कुछ इश्यूज हैं, मार्जिनलिटी, स्ट्रक्चरल इश्यूज जो है वो अभी एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली काफी अप्रोचेस में चेंजेस आई थी, है ना, लीगल प्रोटेक्शन इनको दी गई है। ओके, फॉरेस्ट लॉज थे। ओके, कंट्रोल ओरिएंटेड थी। ट्राइबल अनरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया, यस ट्राइबल अनरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया की बात करें, क्यों है ऐसा कारण? अब वहाँ का कारण ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको जंगलों से निकाल दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे, उनका कल्चर लॉस हो रहा है, लिटरेसी रेट लो है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है, न्यूट्रिशनल स्टेटस लो है, वो डिससेटिस्फाइड है, फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए उनमें अनरेस्ट सी देखने को मिलती हैं। तो इसका कारण क्या है? अब जैसे संथल, मुंडा, गौंड्स जो है माइनिंग के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करना है पीसा एंड एफआरए, तो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट करनी होगी, फॉरेस्ट राइट्स, लैंड के राइट्स उनके लिए सिक्योर करने होंगे, तभी बात बनेगी। कंक्लूजन तो हम इसी से ही करेंगे ना कि क्या उनके लिए हम लोग कर सकते हैं। अब ट्राइब एथनिसिटी क्या है? एथनिसिटी आप एक बात कर लें, एथनिसिटी एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कहता है कि एक ग्रुप ऑफ लोग है, ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका अपना एक अपना अपना ही कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनको हम कहते हैं एथनिक ग्रुप, एक सोशल कैटेगरी है। तन्ना भगत मूवमेंट तो औरवान्स ने शुरुआत की थी, तन्ना भगत मूवमेंट, मिशनरीज के खिलाफ भी इन्होंने मूवमेंट्स की थी, मनी लैंडर्स के खिलाफ की थी। ओके, आगे समझ। उसके बाद एथनिक बाउंड्रीज की बात करें, एलक्यू बार्थियन फ्रेमवर्क की बात करें, एथनिक बाउंड्रीज अब होता क्या है, सोशल नेटवर्क जब होता है, अलग अलग उनके राइट्स होते हैं, अलग अलग उनके सिस्टम्स, फैमिली सिस्टम होता है, मैरिज सिस्टम होता है, तो फैमिली रूल्स होते हैं, मैरिज के रूल्स होते हैं, है ना, घबराते क्यों हो, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, तो अब क्या होता है, बाउंड्रीज बन जाती हैं। तो ये बाउंड्रीज कैसे मेंटेन होती हैं? थ्रू 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 सोशल प्रोसेसेस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, बाउंड्रीज आर मेंटेन थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस। बार्थियन बात ने कहा देखो कहीं पे एंडोगेमस है, कहीं पे एंडोगेमी है, कहीं पे एक्सोगेमी है, कहीं पे लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, रिचुअल्स फेस्टिवल डिस्टिंक्ट है। ओके, अब खासी में मैट्रिलिनियल स्टेटस है बिल्स और नॉन बिल्स के बीच में,
तो बाउंड्रीज परसिस्ट बाय सोशल प्रैक्टिस स्टेट कैटेगराइज। अब देखो बाउंड्रीज कैसे बनती है, जब ये स्टेट कैटेगराइज बन जाती है, जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी आती है सामने, तो बाउंड्रीज बन जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन अलग हो जाती है, नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन अलग बन जाती है, और इसमें बाउंड्री बन जाती है, बाउंडिंग हो जाती है। और वैसे ही जो कस्टम्स होते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं, मैरिज रूल्स, है ना, फैमिली रिचुअल्स, ये भी बाउंड्री पैदा कर देते हैं, है ना। स्टेट भी बाउंड्रीज पैदा कर देती हैं। ओके। सोशल प्रैक्टिसेस स्टेट कैटेगराइजेशन, खासी जो है वो मैट्रिलिनियल है, तो ये खासियों की खासियत है, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो बिल्स को सेपरेट करती है नॉन बिल से साथ, है ना। सोशल कैटेगरी भी है, ये सोशल कैटेगरी आ गई, तो जैसे ये आ गया कौन सा सोशल प्रैक्टिसेस, तो ये कौन सा प्रैक्टिस, मैट्रिलिनियल प्रैक्टिस करते हैं, है ना। किनशिप, किन्स बेस्ड रिलेशनशिप है, मैट्रिलिनियल डिसेंट है, पैट्रिलिनियल डिसेंट है। ओके। कितने आपके रिश्तेदार हैं, तो उनमें फर्स्ट डिग्री ऑफ किनशिप, सेकंड डिग्री ऑफ किनशिप, थर्ड डिग्री ऑफ किनशिप, एम्बिलिनियल डिसेंट है, फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स, किनशिप ग्रुप्स है, तो वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, रिश्तेदारों का एक झुंड है, ग्रुप है। उनमें अपने मैरिज के रूल्स हैं, रिचुअल्स के रूल्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, तो ये बाउंड्रीज कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज बिल्डअप हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि एथनिसिटी और नेशन स्टेट की बात क्या करें। एथनिसिटी तो देखा जाए कि डिस्टिंक्टिवनेस की बात करती है, डिस्टिंक्टिवनेस को डिफाइन करती है, कल्चर यूनिक को आइडेंटिफाई करती है। नेशन स्टेट जो है एक यूनिफॉर्मिटी की बात करती है, एक सेंट्रल रूल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होता है इसमें, इसमें पॉलिटिकल यूनिफाइड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, यूनिफॉर्म पॉलिटिकल सिस्टम होता है। यहाँ पे जो है डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव होता है, इकोनॉमिक सिस्टम प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम होता है। यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक्स की को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये है एथनिसिटी और नेशन स्टेट्स में डी ट्राइबलाइजेशन। तो क्या हो रहा है कि ट्राइबल पीपल जो हैं अब कांटेक्ट के साथ, जब नॉन ट्राइबल्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि उनके रिलीजियस में पार्टिसिपेट करते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो क्या होता है, वो अपना ट्राइबल पीपल जो है वो डिस्टिंक्ट जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वो लॉस कर जाते हैं। तो बाउंड्रीज कैसे बनती है, एथनिक बाउंड्रीज, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है। तो अब किसके लिए एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप्स करता है, वो किसके लिए करता है, वो पावर के लिए करता है, रिसोर्सेस के लिए करता है, स्टेटस के लिए करता है, टेरिटरी के लिए करता है, रिकॉग्निशन के लिए करता है। ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करें, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं। तो आपको इसमें आपको समझना ही होता है, पढ़ना ही होता है, देखना ही होता है। आपको करना क्या है, समझना होता है। जो मैं डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको बता रहा हूँ, ये आप पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक्स में। तो मेजर ट्राइबल मूवमेंट्स हैं। ओके। आप बताओगे झारखंड मूवमेंट्स, तो झारखंड मूवमेंट का मतलब क्या था। तो झारखंड मूवमेंट मार्जिनलाइजेशन, तो झारखंड मूवमेंट से झारखंड बन गया। संथल हल, बिरसा मुंडा, उलगुलान, तो लैंड के खिलाफ इन्होंने, कॉलोनीज के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। बिरसा रिमेन्स ए सिंबल, बिरसा मूवमेंट, झारखंड मूवमेंट,
संथल हुल, colonial land grieves, repression but long memory of resistance। तो बड़े सारे कारण थे। अब उनके जो की फॉरेस्ट राइट से बेदखल कर दिया, लैंड से बेदखल कर दिया, कल्चर का लॉस हुआ, मार्जिनलाइजेशन था, लिटरेसी था, बहुत सारे कारण थे इनके, है ना। फोर्स्ड लेबर, डिनाइल ऑफ पॉलिटिकल वॉइस, फोर्स्ड लेबर था, डिनाइल ऑफ पॉलिटिकल वॉइस। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही काम की, बहुत संथल रिवोल्ट हुआ। तो संथल रिवॉल्ट्स की बात की जाए, सो बुरसा बिरसा मुंडा है, संथल है। सो इसके लिए आपको मेजर ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, जैसे बिरसा ने किया, बिरसा मुंडा ने कॉलोनीज के खिलाफ रिवोल्ट किया, लैंड के खिलाफ रिवोल्ट किया। झारखंड मूवमेंट है, संथल हुल है, हल 1855, तो लैंड के खिलाफ है। ओके, संथल, बिरसा, झारखंड। एथनिसिटी क्या है? तो एक ग्रुप है, तो एथनिक ग्रुप, तो कहा जाता है। तो कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं इनसे, क्योंकि जब डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की बात की जाती है, सो सोशली कंस्ट्रक्टेड ग्रुप, तो इससे कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कैसे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? एक बेसिकली कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी है, सोशल ग्रुप है, आपने ये वर्ड्स यूज करने हैं। तो इनमें एंसेस्ट्री कॉमन होती है, परसीव्ड कॉमन एंसेस्ट्री जब होती है एथनिक ग्रुप की, कहा जाता है कि ये सेम एंसेस्ट्री है इनकी, एथनिक ग्रुप। एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स भी है, लैंग्वेज भी है, कल्चर भी है, कस्टम्स ट्रेडिशन, ये सब आता है उनका। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है जब वो रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं, है ना, compete करते हैं, है ना। पॉलिटिकल पावर बीच में आ जाती है। ओके, स्टेट पॉलिसीज प्रिविलेज वन ग्रुप इसकी वजह से हो जाती है। स्टेट एक ग्रुप को, बिरसा मुंडा मूवमेंट क्या थी? तो ब्रिटिश ने जो लैंड पॉलिसीज थी उसके खिलाफ किया, लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ किया, है ना, उलगुलान। ठीक है, तो कुछ रिफॉर्म्स हुआ, एम्बलम ऑफ
आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी, एथनिक बाउंड्रीज। तो एथनिक बाउंड्रीज का रेफर बर्थ ने दिया था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रोल ऑफ ट्राइबल एंड रूरल मूवमेंट्स इन क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ओके, रीजनलिज्म क्या है? आप देखेंगे बुक लिखी थी, मैंने बताया, बेनेडिक्ट एंडरसन ने, एथनिक कम्युनिटीज, इमेजिन्ड कम्युनिटीज की बुक लिखी थी। एलमान सर्विस ने प्रिमिटिव सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बुक लिखी थी। थ्रू फ्रेडरिक बाथ, एथनिक ग्रुप एंड बाउंड्रीज। सो फ्रेडरिक बार्थ ने लिखी थी एथनिक ग्रुप्स एंड बाउंड्रीज, फ्रेडरिक बार्थ, एथनिक ग्रुप्स एंड बाउंड्रीज। तो इमेजिन्ड कम्युनिटीज, बेनेडिक्ट एंडरसन, फ्रेडरिक बाथ, Alman Service, Primitive Social Organization, Varial Alvin, The Tribal World of Varial Alvin, N.K. Bose, D.N. Mazumdar ने Classical Indian Tribal Ethnographies. Okay. Fifth Schedule, Sixth Schedule, PISA, Forest Rights Act, Reports and Laws, Frederick Barth, Ethnic Groups and Boundaries. ये आपको याद करनी है, अंडरस्टैंड करनी है चीज़ों को। तो resurgence of ethno-nationalism. Ethno-nationalism means resurgence is produced by political boundary maintenance. होता क्या है? ethno-nationalism emerges when ethnic groups जो है वो चाहता है एक रिकॉग्निशन, सोवरेन बनना चाहता है ना? अब वो सोवरेन बनना चाहता है, इससे क्या होगा? कल्चर को प्रोटेक्शन मिलेगी, एथनो नेशनलिज्म। फ्रेडरिक बार्थ, एथनिक ग्रुप्स एंड बाउंड्रीज। बेनेडिक्ट एंडरसन, इमेजिन्ड कम्युनिटीज। Alman Service, Primitive Social Organization. Warrior Alvin, The Tribal World of Warrior Alvin. N.K. Bose and D.N. Mazumdar, Classic Indian Tribal Ethnographies. Hindu Methods of Tribal Absorption. Okay. The Hill, the ethnographies. हिल बुइया कहाँ की है? उड़ीसा के, द हिल बुइया ऑफ उड़ीसा। डिटेल्ड एथनोग्राफी, पीसेंट लाइफ इन इंडिया,
कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया। उसके बाद डी एन मजूमदार, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, द फॉर्च्यून्स ऑफ ए प्रिमिटिव ट्राइब्स, होशियारपुर स्टडीज, इंडियन कास्ट एंड रेस, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, द अफेयर्स ऑफ ए ट्राइब, स्टडी इन ट्राइबल लाइफ, रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, हो ट्राइब, द अफेयर्स ऑफ ए ट्राइब, हो ट्राइब, छोटा नागपुर। द अफेयर्स ऑफ ए ट्राइब, स्टडी इन ट्राइबल लाइफ, ओरवान, मुंडा, संथल ऐसे, गॉन्ड्स एंड टोडा ऐसे, बहुत सारे काम किए। सो एन के बॉस ने कहा कि इंडियन सिविलाइजेशन की अनदर टाइप की इंडियन सिविलाइजेशन है ये। ओके गाइस, तो बुक के नाम आप नोट कर लीजिए। तो रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन कास्ट एंड रेस, होशियारपुर स्टडीज, तो रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड डी एन मजूमदार, ये बुक लिखी थी। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, हिंदू मेथड्स ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन, द हिल बुइया ऑफ उड़ीसा, द पीसेंट लाइफ इन इंडिया, कास्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, डी एन मजूमदार और द हिल बुइया, द पीसेंट लाइफ ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी थी एन के बॉस ने। ओके गाइस, तो इसी तरह से आपने क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस।